નમસ્કાર હોટ ટોપિક કાર્યક્રમમાં હું ધ્વની આપનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે કોરોના કાળમાં જે રીતે તમામ લોકોના જીવન પર અસર પડી હતી તે જ રીતે વેપાર ધંધા પર પણ અહીંયા અસર જોવા મળી હતી। તો સાથે અહીંયા અર્થતંત્ર પણ આપણે સતત નીચું જતું જોયું છે। આ બધાની વચ્ચે ફરી એક વખત એક રાબેતા મુજબ અથવા તો રૂટીન આવી રહ્યું છે ત્યારે અને એ જ સમયે ફરી એક વખત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કોરોના માથું ઉચકી રહ્યું છે। તેની સાથે સાથે આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે જીએસટીના દરમાં પણ કેટલાક સેક્ટરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે તેને લઈ અને વેપારીઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। અત્યારે હાલ જે રીતે કાપડ પર જીએસટી દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે 5%થી સીધો અહીંયા 12% જીએસટી કરી દેવામાં આવ્યો છે ત્યારે કાપડના વેપારીઓ દ્વારા બંધ પાડી અને અહીંયા વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે। સાથે જ અહીંયા જીએસટી દર ઘટાડવાની માંગ પણ કરવામાં આવી રહી છે। જો વાત કરવામાં આવે તો મુખ્યમંત્રી દ્વારા પણ પત્ર લખી અને તેની રજૂઆત નિર્મલા સીતારમણને કરવામાં આવી છે, પરંતુ વેપારીઓ તેમની માંગ પર અડગ જોવા મળી રહ્યા છે। આખરે અહીંયા જીએસટી દર વધવાથી ક્યાંક ને ક્યાંક વેપારીઓને તો અસર થઈ રહી છે, પરંતુ અહીંયા જે સીધી અસર છે એ જનતાને પણ થવાની છે, કારણ કે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કોઈ પણ રીતે જ્યારે વધારો કરવામાં આવે અથવા તો કોઈ પણ અહીંયા સીધી અસર થતી હોય ત્યારે જનતાને તે ભોગવવાનો વારો આવતો હોય છે અને આ વખતે પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હવે તેની અસર સીધી જનતા પર પણ જોવા મળી શકે છે। એટલે જો આપ અહીંયા કપડાં પહેરવાના શોખીન છો, ટાટમાટ થઈ અને ફરવાના શોખીન છો તો કદાચ હવે આજથી જો આપ કપડાં ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો હવે 1 તારીખથી 1 જાન્યુઆરીથી એ જ કપડાં આપને મોંઘા પડી શકે છે। તો આજે ચોક્કસ વેપારીઓની માંગણી શું છે, તેમનો વિરોધ શું છે, આખરે સરકાર પાસેથી તેઓ કેટલી અને કેવી આશા અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે, તે તમામ મુદ્દા પર આજે આપણે ચર્ચા કરીશું। અને આ ચર્ચા માટે અત્યારે હાલ મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ચંપાલાલ બોથરા કે જેઓ ફોસ્ટાના જનરલ સેક્રેટરી છે, સુરતથી આપણી સાથે જોડાયા છે, અને એક મહેમાન પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે દિનેશ દ્વિવેદીજી કે જેઓ ગોલ્ડન પ્લાઝા માર્કેટના સેક્રેટરી છે। બંને મહેમાનોનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા ચંપાલાલજી, આપનાથી ચર્ચાની શરૂઆત કરવા માંગીશું। જે રીતે જીએસટી દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે વેપારીઓ પણ તેમની માંગ સાથે અડગ જોવા મળી રહ્યા છે। સૌથી પહેલા આપની પ્રતિક્રિયા। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो नई अधिसूचना जारी करके कपड़ा उद्योग पे 5% से बढ़ाकर सीधा 12% जो टैक्स किया गया, उसको लेकर के पूरे कपड़ा मार्केट के अंदर एक खलबली मच गई कि जो जीएसटी 2017 में लाया गया था, उस समय भी 22 दिन के आंदोलन के बाद कपड़ा उद्योग ने दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से निवेदन किया था कि कपड़ा पे कभी टैक्स नहीं है तो आप इसको टैक्स के दायरे में मत लाइए। परंतु उन्होंने उस समय स्पष्ट रूप से कपड़ा व्यापारियों को भरोसा दिलाया था कि यह एक चैन बनाने के लिए है, राष्ट्र के विकास में आप सहयोगी बनिए, इसमें सरलीकरण के साथ जब भी टैक्स में बढ़ोतरी होगी तो कपड़ा उद्योग को धीरे धीरे फ्री किया जाएगा। तो उस समय कपड़ा उद्योग मान करके और 5% के स्लैब को तय करके और आगे बढ़ा था। उसके बाद पिछले 2 साल से कोविड से भी लड़ रहा है और जैसे तैसे करके पिछले 4 साल से 5% की चैन में धीरे धीरे व्यापारी सेट हो रहा था। उसी दरमियान पिछले 18 तारीख को सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी करके सीधा 5% से 12% का टैक्स करके और कपड़ा उद्योग के सारे छोटे व्यापारियों को तथा 85% गरीब जनता को महंगाई की मार में डाला। इसका विरोध हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई कपड़ा उद्योग पे 12% का टैक्स कहीं से भी जायज नहीं है और इससे छोटा उद्योग जो भी 1000 रुपए से कम का कपड़ा पहनता है, जिसका परचेजिंग पावर कम है या 85% से ज्यादा छोटे व्यापारी है, उन पे सीधा असर आएगा और बेरोजगार और महंगाई की मार से मरेंगे और कपड़ा उद्योग डे बाय डे बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगा। इसका विरोध हमने माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी से भी रूबरू जाकर के किया था। उसके बाद में कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी को भी समझाया था। सारे हमारी अपनी एसोसिएशन ने सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को, जीएसटी काउंसिलिंग के मेंबरों को अवगत करवाया था कि यह 12% का टैक्स कपड़ा उद्योग के लिए मृत्यु घंट साबित होगा। आप इसको येन केन प्रकार वापस 5% के दायरे में लाइए, नहीं तो हम लोग बेरोजगारी की तरफ और महंगाई की तरफ जाएंगे और हमारा उत्पादन घटेगा। परंतु एक थोड़े मोटे आश्वासनों के बाद पिछले 28 तारीख तक किसी भी तरीके का हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई। जीएसटी काउंसिलिंग में भी कोई मीटिंग इन्होंने कॉल नहीं किया। तब हमने सारे देश के संगठनों से बातचीत करने के बाद कि अगर कपड़ा उद्योग पे 12% 1 तारीख से लागू हो जाता है तो कपड़ा निश्चित रूप से एक
डे बाई डे डाउनफॉल में जाएगा और कपड़ा उद्योग से हम हाथ धो लेंगे। तो अभी सभी संगठनों ने मिलकर आज बंद का आह्वान किया है। मैं सूरत के 185 मार्केटों के 65,000 व्यापारी और साथ में जितने भी टेक्सटाइल घटक उद्योग जुड़े हुए हैं उनका संपूर्ण रूप से बंद है तथा बाहर की मंडियों में भी बंद है, ऐसे हम लोगों को समाचार आए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये हमारा दबाव कहीं ना कहीं सरकार को ये मानने को मजबूर करेगा कि जो 12% का उन्होंने जीएसटी डाला है वो गलत है और उसको वापस 5% रखना चाहिए। इस दबाव के चलते एक ये भी खबर है कि हमारा जैसे ही बंद का आह्वान हुआ तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कल जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि उस जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में हमारी अपनी जो 12% इन्होंने जो बढ़ोतरी की है उसमें एक बार स्थगित करके सारे भारतवर्ष के संस्थानों को सुन करके एक संवाद बना करके देश हित में, व्यापारी हित में और गरीब जनता के हित में वापस 5% की जीएसटी की राहत दे, ऐसा हम लोगों का मानना है। और आज संपूर्ण रूप से मैं मानता हूं कि कपड़ा उद्योग ने बंद रह करके एक दबाव बनाया है कि ये जीएसटी हमारे लिए कहीं से भी उचित नहीं है। બિલકુલ ચંપાલાલજી, અહીંયા ખાસ આપની પાસેથી એ જાણવા માંગીશું કે જે તે સમયે સરકાર દ્વારા જ્યારે જીએસટી હેઠળ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને લાવવામાં આવ્યા ત્યારે એક જે કમિટમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, જે રીતે આપે કહ્યું કે સરકાર કમિટમેન્ટ પરથી ફરી રહી છે, શું લાગે છે કયા એવા તો કારણો છે કે જેના કારણે આખરે અહીંયા સીધું જીએસટી दर વધારવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે? देखिए, सरकार का मैं जहां तक मानता हूं कि सरकार ने जो नियम बनाए थे उनका ये की फंडा था कि जो आईटीसी रिफंड लोगों को दिया जा रहा है वो कहीं बहुत ज्यादा हो रहा था तो उनको वहां कैंसिल करना था। क्योंकि सरकार को कपड़े में 3 तरीके के टैक्स थे, कहीं पे 18% ले रही थी, कहीं 12% ले रही थी, कहीं 5% ले रही थी। जो 18 और 12 के बीच की आईटीसी, 12 और 5 के बीच की आईटीसी रिफंड क्लेम करने का जो सरकार पे बोझ आ रहा था, सरकार उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए प्लान कर रही थी। वो अपने तरीके से उनको सोचना था, परंतु उसका बोझ नीचे की 85% जनता पे, जहां 5% से 12% करके बढ़ाना कोई औचित्य नहीं था। ये 100% ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया और एक ऊपर से जिस तरीके से थोपा गया है, मैं मानता हूँ ये गलत है। जहां पे आपके आईटीसी रिफंड क्लेम सरकार का मजबूरी बन रहा है, वहां का सोच बना करके ऊपर से चयन को आपको कम करना चाहिए ताकि आईटीसी रिफंड भी नहीं जाए और नीचे टैक्स के ढांचे में भी परिवर्तन नहीं आए और गरीब जनता को महंगाई की मार भी नहीं मिले। तो मैं मानता हूं कि आईटीसी रिफंड के चक्कर में पूरे इंडस्ट्रीज को इन्होंने 12% में धकेला, वो गलत है। जी बिल्कुल, દિનેશજી આપણી સાથે જોડાયા છે। દિનેશજી, ખાસ કરી અને જે અહીંયા જીએસટી દર વધારવામાં આવ્યો છે અને આજે જે રીતે કાપડના વેપારીઓએ બંધ પાડ્યું છે, આપની પણ પહેલી પ્રતિક્રિયા શું છે? સાથે અહીંયા જે રીતે ચંપાલાલજીએ પોતાની વાત મૂકી છે અને સાથે વેપારીઓના મનની વાત મૂકી છે, આગામી સમયમાં સરકાર દ્વારા જો કોઈ હકારાત્મક વલણ દેખાડવામાં નથી આવતું તો પછી રણનીતિ શું રહેશે? नमस्कार। जो मैडम चंपालाल जी ने बोला ये तो यहाँ के हमारे जो लीडर है, लीडिंग जो एसोसिएशन है फोस्टा, उसके ये महामंत्री हैं। तो हम पूरी मार्केट इन लोगों के साथ ही इनके मार्गदर्शन में चलते हैं। तो ये जो इन्होंने बताया चंपालाल जी ने, ये बिल्कुल सत्य बताया है कि सरकार ने जो हमें आश्वासन दिया था उससे फिर गई है। और मैं तो ये बोलता हूं कि सरकार को ये 140% की बढ़ोतरी जो कपड़े पे की है, कपड़ा एक जो बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की, रोटी कपड़ा और मकान पर पिक्चर आई थी सन 75 के आसपास, वो भी महंगाई के कारण आई थी। आज वही हिस्ट्री रिपीट्स। तो मैं ये देख रहा हूं कि हिस्ट्री की वही पुनरावृत्ति हो रही है कि कपड़े के ऊपर, जो आजाद भारत में कभी कपड़े के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया था, उसकी एक फिलॉसफी अलग है। उसमें यही कारण थे कि जो एक सूरत का कपड़ा की मैं बात करूं तो ये बहुत गरीब जनता का है, मध्यम वर्गीय, यहाँ सस्ती से सस्ती साड़ी और सस्ती से सस्ती ड्रेस मटेरियल बनते हैं। सरकार इन पर बोझ डाल के, एक तरफ सरकार बोलती कि हम गरीबों की सरकार है, तो ये बोझ सरकार ने क्यों डाला इनके ऊपर, गरीबों के ऊपर? और इससे सरकार को फायदा इसलिए नहीं होगा मैडम कि आप ध्यान से सुने, जब टैक्स बढ़ाए जाते हैं तो टैक्स इवेजन बढ़ जाता है, टैक्स चोरी बढ़ती है। इससे क्या होगा कि टैक्स बढ़ने से करीब 25 से 30% कपड़े की लागत बढ़ने वाली है। अब गांव में गरीब जनता अगर 25-30% कोई चीज कपड़े में बढ़ोतरी हो जाती है तो उनका तो बजट पहले से ही लड़खड़ाया है। आपको शायद ध्यान में हो कि नहीं हो, सरकार करीब 1000 करोड़ रुपए डेली डीजल पेट्रोल गैस से निकालती है और इससे जो 10 से 12 हजार करोड़ आ रहा था तो अब बोल रहे हैं करीब 35 से 38 हजार करोड़ आएगा। तो मैं ये बोलता हूं कि 25 हजार करोड़ के कारण
इसमें 20-25 करोड़ लोग परेशान हो जाएंगे। सरकार अगर यही चाहिए तो थोड़ा सा डीजल पेट्रोल में और बढ़ा सकती थी। 1000 करोड़ जब डेली कर रहे हैं तो ये तो इनके 25 दिन का काम है, थोड़ा सा बढ़ा लें तो वहां से भी निकल जाएगा। और जो ये कानूनों के प्रावधान और ये जो कॉम्प्लिकेशन में फंस रही है पूरी व्यापार, इसमें ज्यादातर बिना पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। आप देखें यहाँ के सूरत टेक्सटाइल मार्केट में 185 मार्केट में करीब 80 से 85 हजार व्यापारी हैं, और उसमें से आप देखेंगे 60 से 70% टू व्हीलर से आते हैं, जो छोटे छोटे, और यहाँ पे 70% मार्केट किराए पे है। मैडम, आपको जान के डेटा आश्चर्य हो सकता है कि जो किराए पे जो अपनी दुकान नहीं ले सकता है, वो 25% अगर ये कास्ट बढ़ती है, उसकी लागत प्राइस बढ़ेगा तो मांग घटेगी। और हमारे CR पाटिल जी का कल अगर आप स्टेटमेंट देखो, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ से हमारे लोकसभा सांसद भी हैं, उन्होंने भी यही चीज बोली कि सरकार से उन्होंने रजुआत करी, और इसमें ये फोस्टा की टीम भी गई थी कि सरकार से रजुआत करी कि लागत बढ़ने से मांग घटेगी, मांग घटने से उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटने से फैक्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री बंद होने से बेरोजगार होंगे, और यहाँ लाखों जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, कुटीर उद्योग, वो बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। पहले काफी बंद हो चुके हैं। जब ये 5% लगाया गया था तो वो जो इनकी फॉर्मेलिटी होती है वो नहीं पूरा हो पाती, तो छोटा मोटा आदमी तो काम छोड़ देता है। वही हालात हमको लग रहे हैं कि सरकार एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बोलती है, दूसरी तरफ लॉ कॉम्प्लिकेटेड करती चली जा रही है। वोकल फॉर लोकल पिछले साल नारा दिया गया था, इससे हमारे कपड़े की जब प्राइस बढ़ेगी तो इंपोर्टेड कपड़ा यहाँ आके और फिनिश कपड़े के रूप में इधर आएगा और हमारी फैक्ट्रियां बंद होंगी। तो ये वोकल फॉर लोकल सरकार का जो मिशन है वो खुद ही फॉरफिट होता है। जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये इंपोर्टेड इंडिया हो जाएगा। तो सरकार जो अपने मिशन है उनको क्यों नहीं मेंटेन कर रही है, और बिना वजह ये मैं ऐसा मान रहा हूं कि सरकार का ये हताशा में कदम लिया हुआ है कि शायद कोरोना के कारण उनकी रेवेन्यू ज्यादा डाउन हो गई तो कहीं से वो रेवेन्यू खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। व्यापार भी 2 साल से कोरोना से मर रहा है, इसको इस समय सपोर्ट की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ना कि इससे ब्लड ले रहे हैं सरकार, वो गलत कर रहे हैं। ચંપાલાલજી, ફરી એક વખત આપની પાસે આવીશ, ખાસ કરી અને દિનેશજીએ જે રીતે વાત કરી કે અહીંયા વેપારીઓ પર કેવી અને કેટલી અસર જે દર વધારવામાં આવ્યો છે તેની થશે। હવે ગ્રાહકોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ, જનતાની વાત કરીએ તો અહીંયા જનતાને આનાથી કેટલી મુશ્કેલી પડી શકે તેમ લાગી રહ્યું છે? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को कोविड के बाद 5 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा है, यानी कि वो जीवन रेखा से नीचे का स्तर जी रहे हैं। और सूरत जो कपड़ा बनाता है वो 1000 रुपए से कम का, और गरीब जनता जो पहनती है वही कपड़े को मैक्सिमम प्रोडक्शन छोटे व्यापारी इस गरीब जनता के लिए करते हैं। तो एक तरफ अगर उस गरीब जनता पे हम 5% से 12% टैक्स करके कपड़े को महंगा करके उन्हीं गरीब लोगों को जिनको कपड़ा बेचना है वहां जाकर के महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो ये तो कहीं पे भी तार्किक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि छोटे से छोटे गृहिणी जो 200-500 रुपया कमा करके अपना घर चलाती है या वो अपना साड़ी सूट वगैरह खरीदती है, उसकी पॉकेट में ये सीधी मार पड़ेगी और वो निश्चित रूप से इससे वंचित होगी। और छोटे छोटे व्यापारी जिनकी लागत कम है, 7-8% करके 6-6 महीने का पेमेंट लेने पे उनका जो वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए बाहर बढ़ेगा, वो भी वहीं कहीं ना कहीं बेरोजगार होगा। मतलब कुल मिला के देश की 85% आबादी जो छोटी तबके से व्यापार में जुड़ी हुई है, चाहे वो घरेलू महिलाएं हैं, रोड पे बेचने वाले हैं या साइकिल पे बेच करके अपनी जीविका करते हैं, गांव में छोटी छोटी दुकानें हैं, उन सबको 6-7 महीने तक का एक्स्ट्रा लागत लगा करके एक तो लागत लगाना पड़ेगा, साथ ही उनको 12% टैक्स गरीब जनता से वसूल करके और पेमेंट भिजवाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि इसका सीधा महंगाई का मार पड़ेगा और उत्पादन घटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। જી ચંપાલાલજી, પણ અત્યારે હાલ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કોટનથી લઈ અને કપડું તૈયાર થાય છે એની આખી જે પ્રોસેસ રહેતી હોય છે અને એના ધ્યાને રાખી અને જે ચાર્જ વસૂલવામાં આવવો જોઈએ રેડીમેડ કપડાનો એના કરતાં કેટલાય ટકા વધારે ચાર્જ વસૂલવામાં આવતો હોય છે અને કદાચ એના જ કારણે કપડાં ઘણા મોંઘા મળતા હોય છે। તો ખાસ કરી અને શું લાગે છે કે આની પર પણ ક્યાંક સુધારો કરવો જોઈએ વેપારીઓએ? ये बात निश्चित है कि जितना, क्योंकि कपड़े की जो प्रोसीजर है वो मेरे हिसाब से ज्यादा रोजगार देने वाली है, क्योंकि एक कपड़ा फैशन के दुनिया में आने से पहले कम से कम 15 से 16 प्रोसेस के अंदर गुजरता है। पहले वो रॉ मटेरियल से लेकर के फिर डाइंग प्रिंटिंग होकर के फिर वैल्यू एडिशन होकर के
फिर उसमें कहीं ना कहीं बुटीक के काम होने के बाद नीचे के स्तर पे जाता है सिलाई होकर के। तो ये 15-16 जगह कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएट करता है, छोटी छोटी महिलाओं को भी रोजगार देता है, अच्छे अच्छे हाउस को भी रोजगार देता है और निचले व्यापारियों को भी देता है, और उसमें कई लोग इस चैन में जुड़े रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये कई हाथों से गुजरने के बाद भी फिर भी कपड़े की जो लागत रहती है या कपड़ा जिस तरीके से हम अवेलेबल करवाते हैं, तो दूसरों की बनस्पत ये कपड़ा सूरत का काफी सस्ता गिरता है। रही बात कॉटन की, तो कॉटन के अंदर कई बार अब जिस तरीके का टैक्स ढांचा दिया गया है, यहाँ पे 5% रख करके फैब्रिक पे 12% वसूल करना, वहां तो एकदम अन्याय सा ही क्या कर दिया गया है। यानी कि 5% यहाँ पे लेकर के 60% घर से इन्वेस्टमेंट करना, ये कपड़े को और महंगा करेगा और आने वाले दिनों में ये महंगाई की मार को बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा और जिस तरीके से गारमेंट हब, टेक्सटाइल मेगा पार्क, गारमेंट हब बनाने की बातें हैं, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये निश्चित रूप से जो कंज्यूमर तक कपड़े की जो महंगाई की बात कह रहे हैं, वो धीरे डे बाई डे कहीं ना कहीं वापस जाकर के सस्ता गिरेगा। परंतु सरकार को उतना सारा इम्प्लीमेंट करवाने के लिए टेक्सटाइल हब, गारमेंट हब, ऐसी योजनाओं को महत्व देना पड़ेगा, न कि टैक्स का भार बढ़ाना होगा। જી બિલકુલ, પણ ચંપાલાલજી અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે કે અત્યારે જે પ્રોસેસ છે એ ઘણી લાંબી છે, જે રીતે અહીંયા આપે કહ્યું, અને ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક રોજગારીનો જ અહીંયા સવાલ ઊભો થાય છે, પરંતુ એમાં પણ સહન કરવાનો વારો જનતાને આવે છે। અને જ્યારે દર સરકાર વધારે છે ત્યારે પણ વેપારીઓ કહેતા હોય છે કે હવે કપડાં મોંઘા થઈ જશે, ત્યારે પણ સહન કરવાનો વારો જનતાને આવતો હોય છે। એટલે અહીંયા કદાચ નુકસાન ન સરકારને છે ન વેપારીઓને છે, અહીંયા સીધું નુકસાન જો કોઈને છે તો એ સામાન્ય જનતાને છે। આ વાત સાથે આપ કેટલા સંમત થઈ રહ્યા છો? बिल्कुल, मैं तो इसी की पैरवी कर रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार का एक रोटी कपड़ा और मकान, कपड़े को वैसे फ्री रख करके रोजगार की दृष्टि से ही देखना चाहिए था, और पिछले 70 साल से उसी दृष्टि से देखा जा रहा था। देश की 135 करोड़ की आबादी को अगर स्वतंत्र रूप से कोई रोजगार अगर देता है तो वो कपड़ा उद्योग देता है। छोटा मोटा कहीं पढ़ा लिखा नहीं भी होता है तो भी कपड़े से जुड़ करके अपना घर चला लेता है, और उस कपड़े से गाँव से लेकर के शहर तक आप देखोगे तो छोटा मोटे जो भी महिलाएं कुछ भी नहीं कर पाती है, वो भी इसमें जुड़ करके अपने आजीविका कमा लेती है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से टैक्स का दायरा बढ़ेगा या डे बाई डे इसमें कठोरपन कानून में आएगा, चोरी बढ़ेगी या कुछ भी बढ़ेगा, इसके अंदर लूज बॉल होने के बाद भी सीधा सा लास्ट भार जो कपड़े का है वो कहीं ना कहीं गरीब जनता पे जाकर के बढ़ेगा। कपड़ा उनको महंगा मिलेगा, सरकार उनके ही जेब से पैसे निकाल करके और अपना खर्चा चलाएगी। ये बिल्कुल सही है, और मैं मानता हूँ कि सरकार को ज्यादा 85% पब्लिक जो गरीबी रेखा के नीचे की 1000 रुपए से कपड़े की परचेजिंग पावर करती है, उनके लिए सोच बनानी चाहिए, उनको कपड़ा महंगा नहीं मिले वैसे कानून लाने चाहिए। और आपका जो कहना है उससे मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ कि नीचे के तबके पे महंगाई की मार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। जी બિલકુલ, દિનેશભાઈ આપની સાથે ફરી એક વખત આવવા માંગીશ, ખાસ કરી અને અમદાવાદ અને સુરતની સાથે ગુજરાત રાજ્યની વાત કરીએ તો ટેક્સટાઇલ હબ છે ત્યારે ખાસ કરી અને હવે સમીક્ષા બેઠક થશે ત્યારે નિર્મલા સીતારમણ મહત્વપૂર્ણ અને હકારાત્મક નિર્ણય લે તેવી આશા અપેક્ષા વેપારીઓ રાખી રહ્યા છે, પરંતુ અહીંયા अन्य રાજ્યોનું વલણ આપ કેવું જોઈ રહ્યા છો? देखो मैडम, आपको मैं याद दिलाऊं, शायद पता हो नहीं, चंपालाल जी भी थे, इनकी पूरी टीम थी, मैं भी साथ में था। गांधीनगर में 11 मार्च 2020 की बात है, नितिन पटेल जी के सामने रजूआत हुई थी। उन्होंने मीटिंग बुलाई थी बहुत सारी एसोसिएशन की, जिसमें जीएसटी कमिश्नर गुजरात गुप्ता जी भी थे। तो मैंने खुद ये रजूआत करी थी पटेल साहब से कि ये 12% की जो प्रपोज्ड इंक्रीज है ये 2020 11 मार्च को भी उठी थी। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने गए थे, तो पटेल साहब से ये बोला था कि सर गुजरात को इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि गुजरात प्रोड्यूसिंग स्टेट है और ये जो जीएसटी है ये कंज्यूमिंग स्टेट को मिलता है। जैसे यहां से प्रोडक्शन हुआ और माल चला गया बिहार, तो यहां से आई जीएसटी बनके और वो बिहार में जीएसटी चला गया, तो केंद्र को तो कहीं से भी मिलेगा, लेकिन स्टेट को उसी स्टेट को मिलता है जिस स्टेट में मटेरियल कंज्यूम होता है। तो आप ये देखो, जीएसटी लगने के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है? हिमाचल प्रदेश को, सिक्किम को, नागालैंड को, क्योंकि उन लोगों के यहाँ प्रोड्यूसिंग तो पहले जीरो थी और इनकम पहले थी, एक्साइज ड्यूटी थी, तो जहां प्रोडक्शन होता था वहां मिलती थी। तो यहाँ जीएसटी लगने के बाद वहां कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं, टूरिस्ट जाते हैं वहां से खरीदते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ गई, 10-10, 20-20 हजार करोड़ बढ़ गई। तो गुजरात के पटेल साहब जो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने बोला था कि अगर गुजरात को फायदा नहीं है अगर जीएसटी बढ़ाने में, तो नुकसान क्या है? तो मैंने ये बोला था कि नुकसान ये है कि इंपोर्टेड अगर कपड़ा आता है तो हमारी इंडस्ट्री बंद होती है,
हमारा रोजगार, यहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, क्राइम बढ़ते हैं, और इनडायरेक्ट जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है वो चली जाएंगी। तो उन्होंने बोला था कि तो अभी इसको अपन होल्ड में डाल देते हैं, ये 2020 मार्च की बात है, उन्होंने होल्ड में डाला था। ओवरऑल जो गुजरात है, गुजरात को इसमें लॉस होगा, और मैं तो ये बोलता हूं कि इंडिया गवर्नमेंट को भी लॉस होगा। इससे जो सबसे बड़ी मार छोटे और मझले व्यापारियों पर किस तरह से पड़ेगी वो मैं आपको एक समझाता हूं कि अगर किसी का 1 करोड़ सेल होता है महीने का, तो उसको अभी 5 लाख जमा करना पड़ता है जीएसटी, अब वो आ जाएगा 12 लाख। अब ये 7 लाख रुपए वो कहां से लाएगा, क्योंकि ये जो जीएसटी भरना होता है, जैसे ही आपका इनवॉइस कटा वैसे ही भर दिया जाना पड़ता है, चाहे वो आईजीएसटी हो या सीजीएसटी या एसजीएसटी। तो और इसका जो मार्केट से पेमेंट आते हैं बाहर से, वो 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो 3 से 4 महीने में कम से कम 4-5 सप्लाई और गया, तो समझो 4 महीने का 4 करोड़ हो गया। तो 48 से 50 लाख रुपए व्यापारी को निकालने पड़ेंगे पहले अपनी जेब से, जब वो पैसा वहां से आएगा रियलाइजेशन में तब उसको मिलेगा। तो ये जो एडिशनल कैपिटल एक साधारण आदमी जो किराए की दुकान लेकर रह रहा है वो कहां से लाएगा। तो इसमें बड़ा जो व्यापारी है जो बैंक से लोन ले लेता है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो ले लेगा, लेकिन छोटा और मंझला जब नहीं कर पाएगा तो वो मरने वाला है। ये सरकार को मैं बार बार समझा रहा हूं कि व्यापार में छोटा व्यापारी मरेगा, और उससे गुजरात को ओवरऑल यही नुकसान होगा कि यहाँ से व्यापार कम हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और बेरोजगारी बढ़ेगी। जो सरकार को रेवेन्यू बिजली के रूप में आती है, टैक्स के रूप में आती है, लोकल टैक्स के रूप में आती है, वो सब कम हो जाएगी। तो सरकार, केंद्र सरकार को तो टैक्स इवेजन से नुकसान है, और स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से नुकसान है। ये सब नुकसान गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठ के करना चाहिए था। मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस तरह से कृषि कानून पिछले बार जून में लाए गए थे, कोरोना काल था, और उनको बिना किसी से ब्रॉड डिस्कशन के, कंप्रहेंसिव डिस्कशन के उन्होंने लागू किए और वो वापस लेने पड़े। सेम चीज मैं देख रहा हूं गवर्नमेंट, जब ये कोरोना काल चल रहा है, अभी तीसरी लहर का, ओमिक्रॉन का इतना बड़ा भय छाया है, उस समय गवर्नमेंट को सपोर्टिव रोल में रहना चाहिए, ना कि ये एक्सप्लॉइटिव रोल में। ये एक्सप्लॉइट कर रही है सरकार, जो उसको बचना चाहिए। ચંપાલાલજી, હવે આગળની નીતિ શું રહેશે? સરકાર તરફથી કેટલી આશા અપેક્ષા, આ અંગે આપનું શું કહેવું છે? देखिए, हमने जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, माननीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी से हमने जिस तरीके की रजूआतें करके, और इसमें जिस तरीके का बात टेक्सटाइल हित में है, उनको समझाने का प्रयास किया है। माननीय पीयूष गोयल जी के बाद ये समझ में भी आई थी, तब उन्होंने हमारा रिकमेंडेशन निर्मला जी को भेजा भी था कि इस चीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है और इस पर जीएसटी काउंसलिंग में चर्चा विचारणा करनी चाहिए। परंतु किसी कारणों से निर्मला सीतारमण जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो एक बार हम पुनः प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात कल की जीएसटी काउंसलिंग में स्थगित होने के बाद सारे संस्थानों की संवाद करके, और टेक्सटाइल हित में जो 5% का जीएसटी दर है उसको लागू किया जाए। उसके बाद भी अगर सरकार किसी तरीके से हमारी बात को समझने में या हमारे को समझाने में सफल नहीं होती है, तो इसका विरोध हम सभी संस्थाएं अलग अलग मिलकर के किस तरीके से करना है, बैठ करके तय करके आगे की रणनीति तय करेंगे। तो दर्शक मित्रों, खास કરી અને કાપડ પર જે જીએસટી દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈ અને વેપારીઓ દ્વારા અહીંયા બંધ પાડવામાં આવી રહ્યું છે, તેની પર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। જે બંને મહેમાનો આપણી સાથે જોડાયા હતા તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિક કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું, રજા આપશો। નમસ્કાર।